अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। So we are starting the same exercise what we were doing the last time. Exercise 6.1. Exercise 6.1. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। So we have done question number 1. Oh, sorry, question number 6. Now we'll do question number 8. Find the area under the standard normal distribution curve. Z is equal to 0 and Z is equal to minus 0.32. So we are doing exercise 6.1, question number 8. Question number 8, find the area between Z is equal to 0 and Z is equal to minus 0.32. This is the standard curve, the standard normal curve. This is the standard normal curve. Here the mean is 0, the Z is 0. On the right side it will be positive value, on the left side it will be the negative value. So this is, we are asked to between 0 and minus 0.32.
So here will be Z minus 0.32. This is 0. So we have to find this area between these 2 points. We will find the area between these 2 points. So first we find the area. Z is equal to minus 0.32. We will use the table. I have sent you the table, table E. We will use the table E of appendix C. Table E of appendix C. This is the table E appendix C. On the left side, we will find minus 0.3. Minus 0.3 will be over there. The value of Z. Minus 3.4. It is going to start minus 3.4. And coming down. Minus 0.3. Minus 0.3. Minus 0.3 will be there. And then 0.02. 0.00. 0.00. 0.01. 0.02. 0.0. 0.01. 0.02. And here minus 0.3. So we will find the value over there. This is the value for minus 0.32. This one. Find the value. The answer is 0.3745. So at here 0.4 0.3745, sorry, 0.3745. This is the answer. In front of 0.3 and under 0.02. This is the value for this one. The value for this one is 0.3745.
Now we will find the value under 0. So the value under 0, area at z is equal to minus 0.32. This is 0.3745. Now we will find the area at 0. At z is equal to 0. Again we will use the table and we'll find the area z is equal to 0. That is on the next page. On the first column, 0.00500. This is the area, this one. From 0, this is the area from this one, and this is the area, that one. So in between will be there, the difference between these two. Therefore, the area in between. Subtract this minus this. 0.5000 minus 0.3745. Subtract the two areas. इसका एरिया यहां से यहां तक का ये पूरा एरिया है, ये Z0 का, और ये माइनस 0.35 का ये पूरा एरिया है. तो इस पूरे एरिया को इस पूरे एरिया में से माइनस करेंगे तो हम इनके दोनों के दरमियान का एरिया आ जाएगा. इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम. यूज द कैलकुलेटर टू सब्ट्रैक्ट. यूज द कैलकुलेटर. 0.5000 minus 0.3745. The answer is 0.1255. This is the answer. This is the required answer. ये हमारे पास आंसर है. इस तरह हमने इसको करना है. 61869 वजाहत 61869. ये भाई बार बार आउट कैसे हो जाते हैं बच्चे कुछ. अम्माद आमिर है, समीर रहमान है, बार बार आउट हो रहे हैं. So this is the answer. Area under the normal curve, under the standard normal curve. Any question? If you want to ask any question, raise your hands. I will unmute and you may ask the question. किसी ने कुछ पूछना है? ये पहले भी बता चुका हूं जी. किसी ने पूछना है तो पूछ ले भाई. Raise your hand. I will unmute.
नो क्वेश्चन? ओके, वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी मैं पिक्चर बना के आपको भेजता हूं। तो ये मैंने आपको पिक्चर भी भेज दी। अब्दुल मोइज 63153। ये जो भी बच्चे, जो स्टूडेंट हैं, ये अपनी आईडी लिखा करे भाई। बगैर आईडी के मुझे फिर तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सैयद शाहरोज, अब इसको मैं तलाश कहाँ करूंगा? ये आईडी लिखा करें भाई। ये अपनी आईडी लिखा करें बेटा, वरना मैं अब एंट्री अलाउ नहीं करूंगा। जिसकी आईडी नहीं होगी उसको मैं एंटर नहीं करूंगा भाई, उसको अलाउ नहीं करूंगा मैं। वो इंतजार करता रहे बाहर ही, उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। आप लोग पता नहीं आईडी क्यों नहीं लिखते अपनी। क्या अली मुजफ्फर ने आईडी नहीं लिखी हुई, मिर्जा असद ने आईडी नहीं लिखी हुई, और बहुत सारे बच्चे हैं जो आईडी नहीं लिख रहे। आईडी अपनी लिखा करें, मुझे तलाश करने में आसानी रहती है बेटा, फिर उसको अटेंडेंस लगाने में, वरना मैं अलाउ नहीं करूंगा। ओके, नाउ वी डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, find the area under the standard normal distribution curve to the right of z, to the right of z equal to 2.01। तो इसके राइट पर हमने लेना है
ये जो पॉइंट वैल्यू दी है z की 2.01, इसके राइट पर हमने लेना है। तो ये मैं फिगर आपको बना के बताता हूं। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। z की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द एरिया टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू 2.01। ये राइट पर है, ये 0 होगा यहां पर सेंटर में, इसके लेफ्ट पर नेगेटिव होगा और राइट पर पॉजिटिव होगा, यहां कहीं z होगा। टू 2.01। तो हम टेबल यूज करेंगे। एरिया एट z is equal to 2.01, एरिया विल बी इक्वल टू, या आप टेबल निकालें और 2 लेफ्ट कॉलम में आप 2 देख लें और ऊपर जो है उस पर 0.1 देख लें। टू देख लें, 2 और 0.1, uh, 0.9778, 0.9778। ये है एट 2.01। यहां पर हमने पहले कॉलम में 2 देखा, यहां पर कहीं 2 है, फिर ये 0.00 है, फिर 0.01 है। तो इसके सामने यहां पर हमने देख लिया, ये है 0.9778, 0.9778। अब हमने इसके राइट पे देखना है, वो कह रहा है फाइंड द एरिया एट द राइट ऑफ 2.01। तो राइट के लिए टोटल एरिया 1 होता है। टोटल एरिया कितना होता है? 1। 1 में से ये पूरा माइनस कर दें तो इसका बाद वाला एरिया आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया वन माइनस 0.9778। 1 एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी है, एरिया क्या है? असल में प्रोबेबिलिटी है। तो
प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हो सबको ऐड करें तो 1 आती है। तो 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से माइनस करते हैं। वन माइनस 0.9778. The answer is 0.0222. ये हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। लेफ्ट साइड तो टोटल 1 है, तो उसके राइट साइड पे उसके निकालना है तो ये माइनस कर देंगे इसमें से। ये एरिया, ये इधर का एरिया है इसके, तो इसके बाद का एरिया टू द राइट जो है वो बचेगा 0.0222। तो पॉजिटिव एरिया जो है ये इसका वो पूरा बाकी एरिया है। और टोटल एरिया 1 है इसका, टोटल एरिया इज 1 में से यहां से ये पूरा एरिया जो है दैट इज 0.9778 लेफ्ट वाला एरिया। तो राइट का एरिया जो बचेगा 1 में से माइनस कर देंगे, पूरे टोटल में से ये इतना हिस्सा माइनस कर देंगे तो ये हिस्सा बच जाएगा 0.0222। ये हमारे पास एरिया इसका आ जाएगा। So if you have any question, you must raise your hand. I will unmute. You may ask the question. Yes. कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लीजिए। आप अपना हाथ उठाइए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा ताकि आप पूछ सकें, वरना हम आगे बढ़ते हैं इसको मिटा के। ये राइट का हिस्सा निकालते हैं। टू द राइट हमने निकालना था तो क्या किया, पहले उसके
नीचे का उसका उस पर एरिया निकाला, वो एरिया क्या होगा 0.927778, वो उसके लेफ्ट वाला एरिया होगा, ये पूरा एरिया उसके लेफ्ट वाला एरिया होगा। अब उसको हमने उसके राइट वाला एरिया निकालना है, यानी इस तरफ का एरिया हमने निकालना है। तो टोटल 1 होता है पूरा एरिया, यहां से यहां तक का 0.5 होगा, यहां से यहां तक का 0.5 होगा, और टोटल एरिया जो होगा वो 1 होगा। ये 0 से इस तरफ का 0.5 होता है, और 0 से इस तरफ का भी 0.5 होता है एरिया, याद रखिए, और टोटल एरिया 1 होगा। तो 1 में से ये एरिया हमने माइनस कर दिया, ये 0.9778 ये वाला एरिया था, ये माइनस कर दिया, तो हमारा लेफ्ट राइट का एरिया आ गया। ये लेफ्ट का एरिया था, वो राइट का एरिया आ गया, तो वो हमारे पास टू द राइट का एरिया आ गया है। इस तरह हम ये एरिया निकालते हैं, राइट और लेफ्ट। और अगर दो पॉइंट्स के दरमियान, इसका और इसके दरमियान होता तो 0.5 होता, तो 0.5 जो है वो इसमें से माइनस कर देते 0.5 में से, तो ये हमारे पास बीच वाला एरिया आ जाता। लेकिन ये चूंकि उसके लेफ्ट का राइट का एरिया निकाला है, तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, to the left of z is equal to minus 0.75, टू द लेफ्ट हमने निकालना है इसका एरिया, इसका z इज इक्वल टू माइनस 0.75। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। टू द लेफ्ट, पहले मैंने आपको दो पॉइंट्स के दरमियान बताया, ये दो पॉइंट्स के दरमियान, फिर मैंने आपको बताया इसके राइट पे, अब लेफ्ट पे, ये हम नहीं देख रहे। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 है भाई। फाइंड द एरिया टू द लेफ्ट of z is equal to minus 0.75, z is equal to minus 0.75। इसके लेफ्ट का एरिया हमने ये वाला एरिया निकालना है भाई, लेफ्ट का एरिया। तो पहले हम इसको उसी तरह टेबल में देखेंगे, एट z इज इक्वल टू माइनस 0.75, टेबल हमारे पास इस तरह